ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। आनंदलीलामय विग्रहाय हेमावदीव्योच्छुविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य चरितामृतରୁ गोटे श्लोक आमे प्रथम आवृत्ति करिवा, तापर से श्लोक नहीं तार पर आमे आलोचना करिवा। महाप्रभु कृपा सिंधु के पारे बुझीते, प्रिय भक्त दंड करें धर्म बुझाइते। आमे ये श्लोक पर आलोचना करिवा। ये अंतलीला द्वितीय परिच्छेद ये श्लोक उल्लेख कर जाइए। महाप्रभु कृपा सिंधु के पारे बुझीते, प्रिय भक्त गणे दंड करें धर्म बुझाइते। अर्थात महाप्रभु कर लीला बुझा बहुत दुष्कर। से महाप्रभु होचंदी कृपार समुद्र। तो महाप्रभु निज भक्त को दंड दे ये जगत रे धर्म शिक्षा दियंती। तो से प्रसंग गोटे कथा रही, महाप्रभु जिते बड़े 24 वर्ष बयस सन्यास नहीं नीलाचल को आसी रहे अवस्थान करते सेतेबड़े गौड़ देशीय केतेक भक्त महाप्रभु सहित नीलाचल अवस्थान करते। से मध्य जनक ना होची भगवान आचार्य। तो भगवान आचार्य चैतन्य महाप्रभु के भिक्षा देवे, अर्थात भोजन देवे। तेनु से विविध प्रकार सब व्यंजन तैयारी करिवे। सुंदर चाउल अन्न से महाप्रभु को खाइबा को देवे। तेनी से महाप्रभु को जने अति प्रिय भक्त छोट हरिदास तांको कहले, तुम्हें माधवी देवी को पाखक जाए सुंदर चाउल एक मान चाउल नहीं आसा। मान कहले उड़िया भाषा रे मान माने गोटे शेर हम। तेईपरी गोटे मान चाउल नहीं आस, उत्तम चाउल। महाप्रभुंकर ये पार्षद मान मध्य बड़ हरिदास अच्छा, छोट हरिदास। ये छोट हरिदास कथा कह जाऊे। तो छोट हरिदास कीर्तनिया थिले, बहुत सुंदर कीर्तन करि पारथिले। जहाँकर कीर्तन रे महाप्रभु अत्यंत आनंद पाउथिले। महाप्रभु जिते पार्षद माने समस्ते अति प्रिय पात्र थिले छोट हरिदास। मैंने तांकर कीर्तन एते सुमधुर। तो ये छोट हरिदास को पठेइथिले माधवी देवी के पाखक उत्तम चाउल एक मान नहीं आसा पाए। तो माधवी देवी कौन सी साधारण स्त्रीलोक नथिले। ये जगत रे महाप्रभुंकर अति अंतरंग 3.5 जन भक्त थिले। 3.5 जन भक्त मान के मध्य ये होचंदी स्वरूप दामोदर गोस्वामी, जे होचंदी ललिता सखी अवतार। राय रामानंद राय जे होचंदी विशाखा सखी अवतार। शिखी माहिती एवं शिखी माहिती भगिनी माधवी देवी। ते माधवी देवी स्त्रीलोक हवा जो
ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଦ୍ଧ କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ 3.5 ଜଣ, ଏଠାରେ 4 ଜଣ ଟୋଟାଲ ହେଉଛନ୍ତି। ତ 4 ଜଣ ମାନଙ୍କ 3 ଜଣ ପୁରୁଷ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ 3 ଜଣ କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ଏ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ହାଫ୍ କୁହାଯାଉଛି, ଅର୍ଦ୍ଧ। ତେଣୁ 3.5 ଜଣ। ସ୍ତ୍ରୀଲୋକମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ହାଫ୍ କୁହାଯାଉଛି? ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ବିବିଧ ପ୍ରକାର ସେବା କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭଗବାନ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଗୁରୁଙ୍କର ବପି ସେବା ସେମାନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସବୁ ପ୍ରକାର ସେବା କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏହିପରି ବପୁ ସେବା, ବପୁ କହିଲେ ଶାରୀରିକ ଶରୀର ଯେ ସେବା, ସେ ସେବା ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଦେହ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାର ଅଧିକାର ସ୍ତ୍ରୀଲୋକମାନଙ୍କର ନାହିଁ। ସେହିପରି ଯେ ଭଗବାନ ଲୀଳା ବିଳାସ କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଅବତାର ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଦେହ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାର ଅଧିକାର ସେମାନଙ୍କର ନାହିଁ। ତ ମହାପ୍ରଭୁ କଠୋର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଥିଲେ, ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ତ ଦୂର କଥା, ସ୍ତ୍ରୀଲୋକମାନଙ୍କ ମୁହଁ ବି ଦର୍ଶନ କରୁନଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ନାମ ବି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁନଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ପ୍ରଣାମ ବି କରିପାରିନଥିଲେ। ଏହିପରି ଅଥଚ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭକ୍ତ ହେଲେ ବି ବିବିଧ ପ୍ରକାର ସେବା ସେମାନେ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ବା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ସେବା ସେମାନେ ବପୁ ସେବାର ବଞ୍ଚିତ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ହାଫ୍। ଯେମିତି ଆମେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ବୁଝିପାରିବା, ମାଧବ ଆମର ଦମୟନ୍ତୀ ଦେବୀ, ଯିଏକି ରାଘବ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ଭଉଣୀ। ତ ରାଘବ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ଭଉଣୀ ଦମୟନ୍ତୀ ଦେବୀ ପାନିହାଟିର ଘର, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ପାନିହାଟିରେ ଗଙ୍ଗାକୂଳ, ଯେଉଁଠାରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ଉତ୍ସବ କରିଥିଲେ ରଘୁନାଥ ଦାସଙ୍କ ଚୂଡ଼ାଦଧି ମହୋତ୍ସବ। ତ ସେଠାରେ ଏ ରାଘବ ପଣ୍ଡିତ ମହାପ୍ରଭୁ ଅତି ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ, ଯିଏକି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରାଇ ପାରୁଥିଲେ, ଏହିପରି ବିଗ୍ରହକୁ ଭଜନ କରାଇ ପାରୁଥିଲେ। ପଇଡ଼ ପାଣି ଡାଇରେକ୍ଟ ଭଗବାନ ସେ ପିଉଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପଇଡ଼ ପୁରା ଖାଲି ହେଇଯାଉଥିଲା। ଏହିପରି ମାନେ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ସେ ସେବା କରୁଥିଲେ, ଏତେ ଉଚ୍ଚ ଭାବରେ ସେ ସେବା କରୁଥିଲେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ହାତରେ ସବୁ ବସ୍ତୁ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଏହିପରି ସେ ରାଘବ ପଣ୍ଡିତ, ତ ରାଘବ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ଭଉଣୀ ଦମୟନ୍ତୀ ଦେବୀ, ସେ ବି ମହାନ ଭକ୍ତ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନୀଳାଚଳରେ ଆସି ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ, ସେଟା ମାଧବୀ ଦେବୀ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଯାକ, ପୁରା ବର୍ଷ ଯାକ ଧରି ବିବିଧ ପ୍ରକାର ସବୁ ପ୍ରସାଦ ତୈରି କରିବେ। ବିବିଧ ପ୍ରକାର ପ୍ରସାଦ ସବୁ ତୈରି କରି, ଶୁଖିଲା ପ୍ରସାଦ ଏହିପରି ତୈରି କରିବେ ବର୍ଷ ଯାକ ଧରି କରି, ବିରାଟ ଗୋଟେ ଆଖାରେ ଭରିଥିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଚାଲିଥିବ। ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇଥିରେ ଖାଇଥିବେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଧରି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସେମାନେ ଆସିଥିବେ ଏ ନୀଳାଚଳକୁ, ରାଘବ ପଣ୍ଡିତ ସେଇ ତାଙ୍କର ଭଗ୍ନୀଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରସାଦ ସାମଗ୍ରୀ ବସ୍ତା ଭରିକିରି ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ରାଘବଙ୍କର ଝୁଲି ଭରିକରି ନେଇ ଆସିଥିଲା। ହରିବୋଲ। ସେ ଝୁଲି ଭରିକରି ନେଇ ଆସିଥିଲା, ସେ ବର୍ଷ ଯାକ ଧରି ଖାଇବେ। ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ପ୍ରେମ ଭାବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ କାମ ସେ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ସେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଥିରେ ଦେଖାଯାଉଛି ରାଘବ ପଣ୍ଡିତ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭଗ୍ନୀ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅଥଚ ତାଙ୍କର ଭଗ୍ନୀ ଏତେ ପ୍ରକାର ସେବା କରୁଥିଲା, ପୁରା ବର୍ଷ ଯାକ ସବୁ ପ୍ରକାର ଏହିପରି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେ ପଠାଇ ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଅତି ଆଦର ସହକାରେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ସେଥିରେ କିଛି ନା କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ, ଏବେ ବର୍ଷ ଯାକ ଚାଲିଥିବ। ତ ସେଇ ମାଧବୀ ଦମୟନ୍ତୀ ଦେବୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବାପୁ ସେବାରେ ବା ତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଏ ସେବାର ସୁଯୋଗ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ହିସାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି ସ୍ତ୍ରୀଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ହିସାବରେ କୁହାଯାଉଛି। ପୁଣି ମନୁ ସଂହିତା
जे कि मनु महाराज मानव जाति मानकर देइछन्ति मनु संहिता जहाँ कहा धर्म ग्रंथ। यही धर्म ग्रंथ अनुसार पुरुष देहधारी पुरुष माने किपरि आचरण करुथिबे, स्त्री देहधारी स्त्रीलोक माने किपरि आचरण करिवे, से सब धर्म से देइछन्ति। तेणु मनु महाराज साई बाबा मन होचन्ति मानव जाति मानकर पिता, अर्थात आमे मनुष्य देह मनुष्य नाम प्राप्त होउछु साई बाबा मनुकर ना अनुसार मनु जेहेतु साई बाबा मनुरु मनुष्य तांठारे मनुष्य जाति आसुछन्ति। अर्थात साई बाबा मनु शतरूपा दुई जन थिले ब्रह्मांकर ठारे जात, तो से दुई जन ठारे मनुष्य जाति उत्पत्ति है। साई बाबा मनु शतरूपारु दुई पुत्र तीन कन्या, अर्थात प्रियव्रत उत्थान पाद और तीन कन्या आकुति देवहूति प्रसूति, ये सबू यही वंश जिते सब मनुष्य जाति मनुष्य मान उत्पत्ति होती। मानव जाति मानक मूल पिता होती मानव जाति मानक पिता होती साई बाबा मनु। मनु का नाम अनुसार आम मनुष्य देह प्राप्त हो मनुष्य नाम प्राप्त हो। तो से साई बाबा मनु ता से गोटे संहिता लिखिछन धर्म ग्रंथ। से धर्म ग्रंथ से उल्लेख करछन्ति जो ठारे पुरुषंकर ब्रेन सबस्टांस 64 आउंस, सेठारे स्त्रीलोकंकर ब्रेन सबस्टांस 34 आउंस, तार माने पुरुषंकर ठारे हाफ। तो तेनु स्त्रीलोक मान को केवल पुरुष मान के भली समान अधिकार दिया जाई पारिबो नाही। तेनु स्त्रीलोक माने सर्वदा पुरुषंकर अधीन जदि रहिबे तेबे से माने सुखी हेबे, से माने सेतबे आनंद स्थिति रे अवस्थान करिवे। तो निठारे देखा जाउची स्त्रीलोक माने जदि ये नियम भंग करी पुरुष मानकर भली समान अधिकार ग्रहण करी से हिसाब रे से जदि आचरण करिवे ताले से केवल सुखी होई पारबे नाही, जीवन केवल आनंद प्राप्त होई पारिबो नाही। तेन मनु संगीत मनु महाराज ये निर्देश देउछन्ति विवाह हेबा पूर्व पर्यंत माने झियो तांकर पितांकर अधीन रहिबा। पितांकर अधीन पिता जते उपयुक्त एक पात्र हाथ में अर्पण करेंगे विवाह हवा परे से स्वामी अधीन रहा। स्वामी जिते वर्णाश्रम धर्म अनुसार गृह त्याग कर वन को चलीजे भगवान को भजन करने से तार उपयुक्त पुत्रंकर अधीन रहा। तेने स्त्रीलोक मान के केवल पुरुष मानकर भली इक्वल राइट दिया जाई पारिबो नाही। यहीपरि यदि से माने जीवन यापन कर तेबे से माने सुखी हो पारे, ताले केवल से माने सुखी हो पारे। तार प्रत्येक प्रमाण होची ये पाश्चात्य देशवासी स्त्रीलोक माने पुरुषंकर भली इक्वल राइट समान अधिकार प्राप्त हवा जोगे से माने केवल जीवन सुखी हो पारना, केवल से माने आनंद पाई पारना। से माने भोग्य वस्तु हिसाब रे समस्त पाखे ये एक हेय वस्तु रूप परिणत हो जाए, तो सुखी हो पारना। तेणु प्रकृत सुख हूँ प्रकृत आनंद आम से प्राप्त हो पाए। आमर जे मनुष्य जातिर पिता साई मनु स्त्री पुरुष मान के किपरि आचरण हवा उचित से जो धर्म ग्रंथ देले से धर्म ग्रंथ अनुसार जिते आम आचरण करते से आम सुखी हो पाए। पुरुषों कर्तव्य हो जी माने मनुष्य देह प्राप्त हुए तार कर्तव्य हो भगवान को चरणाश्रय कर भगवान को भक्ति करवा, यह हूँ पुरुषर कर्तव्य। तो पुरुष जिते बड़े भगवान चरणाश्रय कर भगवान को भक्त हे से स्त्री कर्तव्य हूँ प्रतिव्रता नारी हिसाब रे स्वामी से भगवत भक्ति करिवार सहायता करवा। तेईपरि स्वामी स्त्री जदि परस्पर सहायता माध्यम यहीपर यदि भगवत भक्ति आचरण करते ताहले जीवन परम सिद्धि प्राप्त हो
ये जन्ममृत्यु चक्र उद्धार ही भगवत धाम को चली जापारे। यह हूँ मनु महाराज विधान। तेणु जे पुरुष देह प्राप्त हो तार कर्तव्य हो भगवत भक्ति आचरण करेंगे। स्त्री देह जे प्राप्त हे तार कर्तव्य हो स्वामी अनुगत हो स्वामी सेवार सहायता करेगा। तेईपरी स्वामी सेवार सहायता करने जो सी स्वामी गति प्राप्त है। अर्थात स्वामी जितेबले यहीपरी जीवन परम सिद्धि प्राप्त है भगवत धाम को चली जाए सहित से भी भगवत धाम को चली जाए। केते सुंदर विधान दिया जाए। तार प्रत्येक उदाहरण होमर भागवत में उल्लेख रही पृथु महाराज और अर्ची। पृथ्वी महाराज की पत्नी अर्ची सागर पृथ्वी एक छत्र सम्राट थिला राजा थिला पृथ्वी महाराज। पृथ्वी महाराज वर्ण धर्म अनुसार ये राज्य शासन करते प्रजा मान पुत्रवत पालन करते यथासम उपयुक्त पुत्र हाथ में दायित्व भार दे से बानप्रस्थ अवलंबन करी भगवान भजन करने मन को चली जाते। पतिव्रता पत्नी अर्ची स्वामी अनुगामी होते सेठारे भगवान को भजन करी जीवन परम सिद्धि प्राप्त है। पृथ्वी महाराज देह त्याग करी से भगवत धाम को चली जाए। तेणु पतिव्रता पत्नी अर्ची से स्वामीगत प्राण। तेणु स्वामी चिता रचना करी स्वामी देह से स्थापन करी स्वामीगत प्राण हवा जगह से चितार निजे को आहुति देले। तो ये सती हवा जो पंथा आमर आर्य संस्कृति रही ये स्वेच्छा स्वामीगत प्राण अर्थात स्वामी व्यतीत अन्य कौन पुरुष प्रति तार मन न स्वामी नाई तेणु सी चिंता करेंगे मोर रही किसी आवश्यक ना। तेणु स्वामी सहित सहगमन करेंगे। तो स्वामी सहित सहगमन करेंगे स्वामीगत प्राण हवा जगू से स्वामी चितार जो आहुति देवे से अग्नि तांकर पाखे चंद्र किरण सदृश हो। तो चंद्र किरण सदृश हीपरी स्वामी चितार आहुति दे देह नष्ट हिसाब से या नष्ट ये जिते चितार स्वामी स्त्री दुईजन यहीपरी अग्निर दाह हो से माने स्वरूप अवस्था प्राप्त अर्थात भगवान पार्षदत्व रूप प्राप्त हो। तो से वैकुंठर दिव्य विमान से आस उपस्थित हो गले। जिते हो गला से सर्व ये पृथ्वी महाराज एवं अर्ची दुईजन से भगवान एवं लक्ष्मी परी रूप प्राप्त है। अर्थात पृथ्वी महाराज भगवान नारायण के परी रूप प्राप्त है और अर्ची तांकर पत्नी लक्ष्मी भली रूप प्राप्त है। तेईपर से दिव्य विमान आरोहण कर भगवत धाम को चली गए। भगवत धाम भी वैकुंठ भी पति पत्नी संबंध रही किंतु सेटा निज देह सुख पाए नुहे सर्वदा भगवत सेवा प्रति आकृष्ट। यहीपरि देखा जाउची ये आमर भारतीय संस्कृति माने यहीपरि स्त्री पुरुष उभयंकर कर्तव्य होची आमर जो पूर्व पुरुष जो मनु महाराज मनुष्य जातिर पिता से पिता आम मन जो विधान देइछंती से विधान अनुसार यदि आम जीवन यापन करूँ ताहले आमे चिरतर पाई ये जन्मति चक्र उद्धार नित्य आनंदमय धाम भगवत धाम को फेरी जाई पारिब। एठार देखा जाउची जे चैतन्य महाप्रभु जे कि साक्षात भगवान से भगवान सेवार ये माने निज निज जीवन सब उत्सर्ग करते। तो से मानकर मध्य ये जनक ना एठार कहा जाउची महाप्रभु अति अंतरंग 3.5 जन भक्त थे। तो से 3.5 जन भक्त मानकर मध्य प्रथम होची स्वरूपदामोदर गोस्वामी जे कि ललिता सखींकर अवतार, रामानंद राय जे कि होती विशाखा सखींकर अवतार, सिखी माहिती से राधारानी का निज जन। ठीक से हीपरी माधवी देवी ये भी राधारानी एक निज जन किंतु स्त्री देह प्राप्त हवा जोगु तांको हाफ कहा जाउछि। तेणु महाप्रभु 3.5 जन अंतरंग भक्त
तो 3.5 जन अंतरंग भक्त मान मध्य माधवी देवी अत्यंत वृद्ध अवस्था महाभागवती महान भक्त तांकर पाखरु जाई छोट हरिदास महाप्रभु लगी एक किसी उत्तम चाउल भिक्षा करी आनते तो से चाउल रंधन कले भगवान आचार्य सुंदर माने अन्न तैयारी है विविध प्रकार सब व्यंजन तैयारी करले महाप्रभु मध्याह्न समय आसिले भोजन करने आ भोजन जिते बसती से उत्तम चाउलर अन्न विविध प्रकार सब व्यंजन तांको सम्मुखें जिते उपस्थित करागला तो महाप्रभु चाउल देखी प्रशंसा को लगे ये उत्तम चाउल तुम्हें केउठू पाइल भगवान आचार्य को पचारे भगवान आचार्य कहले जे ये माधवी देवी के पाखरु ये चाउल अना जाए तो महाप्रभु से पचारे किए जापाई तो सेते बड़े भगवान आचार्य छोट हरिदास का नाम उल्लेख करले से महाप्रभु से चाउलर बहुत प्रशंसा करले चाउलर अन्न बहुत प्रशंसा कले जिते सब व्यंजन तैयारी करते सब प्रशंसा कले उत्तम रूप में भोजन कले भोजन कर सारापर महाप्रभु निज बासा स्थान गंभीर फेरी आसिले आसी गोविंद को कहते सेवक गोविंद को कहते गोविंद तुम्हें आज ये नियम पालन कर जे एठाकू केबे हेले छोट हरिदास को आसवा को देव नाई दार मना है तुम्हें ये आदेश कड़ाकड़ी भाव में पालन कर तो ये खबर जिते बड़े गोविंद भक्त मान कहले समस्त आश्चर्य हो गले क्यों कारण जो छोट हरिदास दार मना करागला महाप्रभु दर्शन करने से जापर ना महाप्रभु दर्शन देवाई चाहती ना तो कहीं कौन कारण बुझीपारे ना छोट हरिदास दार जो मना हो गला सी जो जानिले से खियापा सब बंद करदे उपवास रहा हाँ भगवान के सेवार वंचित हो गले प्रतिदिन से भगवान को ये मधुर स्वर कीर्तन कर श्रवण कराऊले से सेवार से वंचित हो गला तेन ये जीवन रखी लाभटा कौन क्या बा आछाए परान किसुक पाइया नरोत्तम दास केन नागेन मरिया ये नरोत्तम दास ये कथा कहते ये शरीरटा जदि भगवान के सेवा जदि सेवार निरीक्षण जदि ना है तो ये शरीर रखी लाभटा कौन तो ये शरीर जब भगवान सेवार वंचित है तो ये शरीर रखी लाभटा कौन हम यही चिंता कले तो से भक्त माने छोट हरिदास दुख देखी 3 दिन पर ये स्वरूप दामोदर के सही महाप्रभु पाखक उपस्थित है पाखक जाए उपस्थित कहते प्रभु के अपराध जोगु छोट हरिदास दार मना करागला तो महाप्रभु से कहते प्रभु कहे बैरागी करे प्रकृति संभाषण देखिते ना पर आमी ताहार बदन अर्थात जो मैंने त्यागी सन्यासी ब्रह्मचारी सबकि छाड़ी छड़ी आसती भगवान को भजन करने आ भगवान को भजन करने आसी स्त्रीलोक मान सहित अति अंतरंग भाव मिसी से मान सहित वार्तालाप करवा यह हूँ महान अपराध तेणु सेहीपरि ब्रह्मचारी सन्यासी को मुह मु दर्शन करने चाहूनी महाप्रभु एक कथा कहे बैरागी करे प्रकृति संभाषण देखते ना पर आमी ताहार पदम तेणु भागवत में कह मात्रा शशा दुहित्रा बा ना विविक्तासन भवे दुर्बार इंद्रिय ग्राम विद्यांसमपि कर्षति भागवत एक कथा कह अर्थात निज माँ निज भौनी निज कन्या सहित केबे हेले निर्जन एक आसन रे बसिब नाही एमती महान ज्ञानी मानकर बुद्धि भ्रष्ट हो जाए ये शास्त्रवाणी निज माँ निज भौनी निज कन्या सहित केबे हेले
ଏକ ଆସନର ନିର୍ଜନରେ ବସିବ ନାହିଁ। ଏ ଭାଗବତ ଏ କଥା ମନା କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ ବିଧାନ ରହିଛି। ସେଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ବାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କରେ ବିଷୟ ଗ୍ରହଣ ଦାରବୀ ପ୍ରକୃତି ହରେ ମୁନେରପିମ। ଦୁର୍ବାର ଇନ୍ଦ୍ର, ଆମର ଇନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ଅତି ବଳବାନ, ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ବହୁତ ଦୁଷ୍କର। ଏମିତିକି ମହାନ ବୀର ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏ କଥା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଚଞ୍ଚଳ ହି ମନ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରମାତି ବଳବଦ୍ଦୃଢ଼ଂ ତତ୍ସହଂ ନିଗ୍ରହଂ ମନ୍ୟେ ବାୟରୀବ ସୁଦୁଷ୍କରଂ। ଅର୍ଥାତ୍ ମନ ଏତେ ଚଞ୍ଚଳ, ସେଇ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ବହୁତ ଦୁଷ୍କର। ଏମିତିକି ବାୟୁକୁ ଯଦି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିହେବ ତଥାପି ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ହେବ ନାହିଁ। ତ ବାୟୁକୁ କେହି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବାୟୁ ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆମର ଆଖି ଆଗରେ ବିରାଜମାନ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାୟୁକୁ ଦେଖିପାରୁନା। ସେ ବାୟୁକୁ କେମିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ? ତଥାପି ଅର୍ଜୁନ କହିଛନ୍ତି ବାୟୁକୁ ଯଦିଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିହେବ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିହେବ ନାହିଁ। ମନ ଏତେ ଚଞ୍ଚଳ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ବାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କରେ ବିଷୟ ଗ୍ରହଣ ଦାରବୀ ପ୍ରକୃତି ହରେ ମୁନେରପିମ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଚକ୍ଷୁ, କର୍ଣ୍ଣ, ନାସିକା, ଜିହ୍ବା, ତ୍ୱକ୍, ଏ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ। ଏ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଉପଭୋଗ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି କ'ଣ? ରୂପ, ରସ, ଗନ୍ଧ, ଶବ୍ଦ, ସ୍ପର୍ଶ। ଆଉ ତା ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ସୁନ୍ଦର ରୂପ କହିଲେ କ'ଣ? ଏ ଜଗତ ବିଷୟ ଭୋଗର ବସ୍ତୁ ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପ। ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପ ପ୍ରତି ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ରୂପ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ। ଏଥିଲାଗି ଜଳବନ୍ଧନ, ଭବବନ୍ଧନ। ରୂପ, ଗନ୍ଧ, ପୁରୁଷ ସେ ଚାହାନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀର ଦେହର ଘ୍ରାଣ, ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ସେମିତି ପୁରୁଷ ଦେହର ଘ୍ରାଣ, ଗନ୍ଧ, ରୂପ। ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ? ଚକ୍ଷୁ, କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରା ସ୍ତ୍ରୀଲୋକର ମଧୁର କଣ୍ଠ। ସବୁ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ମନ୍ଦିର ଆସୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବେଶରେ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବେଶରେ ନାରୀର ମଧୁର କଣ୍ଠ ଗୀତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଏ ମହା ଭୟାନକ। କେବେ ହେଲେ ସେ ଭଗବତ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବନି, ପ୍ରଗତି କରିଥାଏ, ଅଧଗତି ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଠାରେ ଏଇ ସାବଧାନ ବାଣୀ ଶୁଣାଯାଉଛି। ଚକ୍ଷୁ, କର୍ଣ୍ଣ ନା କାନ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ନାରୀର ମଧୁର କଣ୍ଠ ଗୀତ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଏ ମହାବିପଜ୍ଜନକ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏସବୁ ବୈରାଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଷେଧ। ଚକ୍ଷୁ, କର୍ଣ୍ଣ, ନାସିକା ଦ୍ୱାରା ସୁନ୍ଦର ଘ୍ରାଣ, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷର ଘ୍ରାଣ, ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀର ଦେହର ଘ୍ରାଣ। ଜିହ୍ବା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ, ଉପାଦେୟ ସব ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତୁ। ଜିହ୍ବା ଯାହା ଚାହୁଁଛି ତା ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା। ଏସବୁ ମହା ବିପଜ୍ଜନକ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଜିହ୍ବା ଲାଲସା ଯେଇ ଇତି ଉତି ଧାୟ ଶିଷ୍ଣ ଉଦର ପରାୟଣ କୃଷ୍ଣ ନାହିଁ ପାଏ। ଜିହ୍ବା ତାଡ଼ନା ଯେ ଇଆଡ଼େ ଯାଉଛି ସିଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଧାଉଁଛି, ସେ କେବେ ହେଲେ କୃଷ୍ଣକୁ ଭଜନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଜିହ୍ବା ଲାଲସା ଯେଇ ଇତି ଉତି ଧାୟ, ମାନେ ଧାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଶିଷ୍ଣ ଉଦର ପରାୟଣ, ସେ କେବଳ ପେଟୁକ, ଅର୍ଥାତ୍ କେମିତି ଉଦର ପୂର୍ତ୍ତି କରିବି ସେଇ ଚିନ୍ତାର ମନ। ତେଣୁ ଉଦର ଯେତେ ଭରିବ, ଜିହ୍ବାର ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେ ଉଦରକୁ ଭରିବ, ଉଦର ବେଗ ଯେତେ ବଢ଼ିବ, ସେତେ ଜନନେନ୍ଦ୍ରିୟ ବେଗ ବଢ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ସେ ଆଉ କେବେ ହେଲେ ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ଚ୍ୟୁତ ହେଇଯିବ। କାହିଁକିନା ଏ ତିନୋଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଗୋଟେ ତିନୋଟି ବସ୍ତୁ ଏକ ସରଳରେଖାରେ। ଜିହ୍ବା, ପ୍ରଥମେ ଜିହ୍ବା ମାଧ୍ୟମରେ ଖାଦ୍ୟବସ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତ ସିଏ ଖାଦ୍ୟବସ୍ତୁ ଉଦରକୁ ଯିବ। ଉଦର ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ତାଠାରୁ ଅଧିକ
उदर भरला पर उदर बेग बढ़ला उदर बेग जिते बढ़ से तो जननेन्द्रिय बेग बढ़ीज से काम पीड़ा एत उत्पीड़ित से तो निजक कंट्रोल कर पारना से भक्ति राज्य से च्युत हो तेणु महाप्रभु कहे से केवल आ कृष्ण की प्राप्त हो पार ना कृष्ण भोजवा तरे संसारे आईन मिछे माया बद्ध हुए वृक्ष सम हुए से आ भगवान को भजन कर पारना फल रूपे पुत्र कन्या डाल भांगी पड़े काल रूपे संसारते पक्षी भाषा करे कृष्णकर अष्टोत्तर शतनाम ये कथा कहुच्छी तेणु जो मैंने त्यागी जीवन यापन कर बहुत सावधान हवा कथा ता ना केवल इंद्र बेग को निज नियंत्रण रखी पारिबा ना यहीपर अभ्यास करले तेबे भगवान के कृपार धीरे धीरे हमारे इंद्र बेग दमित हो ता के इंद्र बेग दमन कर पारू तेने चक्षु कर्ण नासिक जीवत्व तक माने चर्म स्पर्श स्त्री चाहे पुरुष देह स्पर्श पुरुष चाहे स्त्री देह स्पर्श यहीपरी जदि इंद्र उपभोग के विषय प्रति जब आकृष्ट हो ताले से केवे हेले ये भगवत भक्ति राज्य प्रगति करी जनवृत्ति चक्र उद्धार भगवत धाम को फेरी जाई पारिब ना तेणु महाप्रभु दुर्बार इंद्र करे विषय ग्रहण दारवी प्रकृति हरे मुनिर पिम जेमिति कह शाड़ी दुकान शो केसरे सब स्त्रीलोकर मूर्ति सब रखा जाए विविध प्रकार सब ड्रेस पिंधिक सब रखा जाए स्टैच्यू सब से सब मूर्ति एमती कि ज्ञानी गुणी मुनि जन जदि से मूर्ति देखिए तथापि से मन में काम भाव जात हो यही माने से तो स्टैच्यू जीवन तो नारी मूर्ति नहीं तथापि से मूर्ति देखिले बड़ बड़ ज्ञानी मुनि ये मानकर मन विचलित हो जड़ जगतर ये मन एत प्रभावशाली से मन को नियंत्रण कर बहुत दुष्कर से अर्जुन कहते चंचल ही मन कृष्ण प्रमाति बलवद्दृढ़ तत्संग निग्रह मन्ने बाहर सुदुष्कर कहीं आजिकल सब ये तो आगरे यहीपरी 500 वर्ष पूर्व महाप्रभु कथा कहते कि वर्तमान समाज एत भ्रष्टा हो जाए दुकान जियाड़े अनइबे स्त्रीलोक मान सब नग्न चित्र सब ये सब किए केमिति माने देहर अर्धनग्न सब वस्त्र पिंधुचे से सब चित्र उठेगिरी सब शो केस रखा जाए ये सब चित्र देखिले माने से जिते बड़ा ब्रह्मचारी हूँ सन्यासी हूँ मन ये विकार राशि उपस्थित हो काम भाव जाते हैं जीवन कारण आजिकल महाभयंकर परिस्थिति जियाड़े अनइबे सब स्त्री पुरुष नग्न चित्र ये सब महाविपज्जनक ये सब चित्र सब रखा जाए दुकान रे सब शाड़ी दुकान हो वस्त्र दुकान ये सब रखा जाए यहीपरी पूरा नग्न चित्र किसी देहर नाई सामान्य टिके खानी वस्त्र लगाना है से सब चित्र नहीं देखाना हो लोक मान आकृष्ट करे से सब किनिकी पिंधापी तेना ये सब चित्र देखिले ज्ञानी गुणी मुनि ऋषि मानकर मन विचलित हो जाए ताहले जीवंत स्त्रीलोक सहित जिते वार्तालाप हो ताहले कौन ना हम तेना महाप्रभु छोट हृदय के माध्यम शिक्षा दौरान तेना से कहते क्षुद्र जीव सब मर्कट वैराग्य करिया इंद्र चराय बोले प्रकृति संभाष्य अर्थात आमे समस्त जीवात्मा जीवात्मा हिसाब से आमे समस्त अति क्षुद्र जदि आमे भगवान के विभिन्न अंश चित स्फुलिंग तथापि आमार परिमाप हो अति क्षुद्र कहीं शास्त्र कहुच्छी केशर अग्रभाग को नहीं जदि 10,000 भाग विभाग करा तार एक भाग होची आत्मार परिमाप तो आत्मा जदि चित वस्तु भगवान अंश विशेष
कहीं भगवान कृष्ण गीतार कहते ममे वांश जीव लोक जीवभूत सनातन। तो ये भगवान का अंश विषय ममे वांश ममे बा अंश अर्थात भगवान कहते मोर अंश विशेष ये हूँ के विभिन्न अंश जीवात्मा जीवात्मा भगवान के विभिन्न अंश हवा जो चित स्फुलिंग चित वस्तु चित वस्तु हेले भी तार आकार अति क्षुद्र हवा जो से माया द्वारा मोहित अर्थात माया तार उपर प्रभाव विस्तार कर पारुछ माया जदिव किसी नुहे किंतु से माया चेत स्फुलिंग जीवात्मार उपर निजर प्रभाव विस्तार कर पारुछ। तेणु महाप्रभु क्षुद्र जीव सब मर्कट वैराग्य करिया मर्कट वैराग्य माकड़ माकड़ किछि पिंदंती नहीं एमिति कौन से वन जंगल अवस्थान करती तो माकड़ बाय ढंगे बड़ सन्यासी कौन जागतिक वस्तु सहित संबंध अतः देहर कौन वस्त्र पिंधती ना एवं से बनर फलमूल खाई जीवन धारण करते किंतु माकड़ जदिओ बाय ढंगे सन्यासी बेश किंतु 8-10टी स्त्री माकड़ सांगे रखिए रतिक्रिया करने तो यहीपरि जो माने वैरागी वेश धारण कर आसती मंदिर को ब्रह्मचारी हाँ सन्यासी है वानप्रस्थ जीवन यापन कर भगवान को भजन करने आसती से माने यहीपरि इंद्र मान द्वारा इंद्र उपभोग विषय प्रति यदि आकृष्ट हेब तार से केवल भक्ति मार्ग प्रगति करी पारिब नाही ये कथा कह कहीं त्यागी वेश से धारण करछंती नाली वस्त्र धारण करछंती हाथ में जपमाला रही जप करछंती किंतु इंद्र साहाय्य देखुछंती कुआड़े नारी कुआड़े कौन सुंदर स्त्री चित्र ये इंद्र साहाय्य से देखुछंती तेने से केवल भजन करी पारिब नाही। तेणु महाप्रभु कहते क्षुद्र जीव सब मर्कट वैराग्य कर इंद्र इंद्र मान के चराए अर्थात इंद्र मान को द्वारा देखुच कड़े सुंदर स्त्री सहित केमिति वार्तालाप कर सहित निर्जन मिसी पार यही सब चिंता अथच हाथ में माला रही जपमाला मन इे नहीं मन सियाड़े पड़े तेईपरि आमर यदि इंद्रिय द्वारा इंद्र उपभोग विषय प्रति आम धावित हेबू ताले केवल आम भक्ति मार्ग भक्ति करी जीवन में परम सिद्धि प्राप्त हो पार। तेने महाप्रभु तांकर प्रिय भक्त छोट हरिदास के माध्यम ये जगतवासी मान के शिक्षा दौरान जो मैंने वैरागी हेबे त्यागी जीवन यापन करछंती एहीपरि सर्वदा स्त्रीलोक मान के सहित संबंध संपूर्ण रूप छिन्न करी भगवान के सेवार रत होगा पड़े तेरे यहीपर नैष्टि भक्ति आचरण करी से जीवन में परम सिद्धि प्राप्त हो पाए ताना कहीं जन्मति चक्र उद्धार हो पार। तेने महाप्रभु कहते जे कथा जे आमे समस्त क्षुद्र जीव सब मर्कट वैराग्य माकड़ भली वैराग्य आचरण कर माकड़ जमीती बाय ढंगे सन्यासी बेश किंतु 8-10टी स्त्री माकड़ पाखे रखी केवल रतिक्रिया करने निजर माँ निजर भौनी निजर झील ये सब पाखे रखी यहीपरि वैराग्य आचरण को कहुच्छी मर्कट वैराग्य। तो से मर्कट वैराग्य आचरण द्वारा कहीं ए मन को नियंत्रण करि पारिब नाही इंद्र मन को निजर कबल रखी पारिब नाही एहीपरि से केवल भगवत भक्ति रे नियुक्त रही पारिब नाही। जीवन में परम उद्देश्य आम दुर्लभ मनुष्य देह प्राप्त हो दुर्लभ मनुष्य देह द्वारा भगवान को भजन करिए भगवान को सेवा करी ये जन्मति चक्र उद्धार नित्य आनंदमय धाम भगवत धाम को फेरी जाए
সেই সুযোগ আমি যদি গ্রহণ ন করিবা তাহলে পুনি মনুষ্য শরীর হারাই মনুষ্য শীতল শরীরকে ফেরি যা কেবে ଆଉ ଜନ୍ମତି ଚକ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହି ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଯେ ତୁମେମାନେ ଏସବୁ କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଇ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାଅ। ବୃଥା କାହିଁକି ଏସବୁ କାମରେ ତୁମେ କଥା ନେଇ ତୁମେ ଏତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛ? ଏସବୁ କଥା ଛାଡ଼ି ତୁମେ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ଲାଗିଯାଅ। ମହାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହିବା ଯୋଗୁଁ ଭକ୍ତମାନେ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ନୀରବ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିତ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ଚାଲିଗଲେ। ତ ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଛୋଟ ହରିଦାସଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ତାଙ୍କୁ କୃପା କଲେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆସି ଛୋଟ ହରିଦାସକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ହରିଦାସ ତୁମର ଲାଗି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲେ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରୋଧିତ ମନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ସ୍ନାନ କର, ଭୋଜନ କର। ମହାପ୍ରଭୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୃପାମୟ, ସେ ତୁମକୁ କୃପା କରିବେ। ତ ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଏହିପରି କଥାରେ ଛୋଟ ହରିଦାସ ସେତେବେଳେ 3 ଦିନ ଉପବାସ ପରେ ସ୍ନାନ କରି ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତ ଏହିପରି ହରିଦାସ ଛୋଟ ହରିଦାସ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ କଲେ କେବେ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋତେ କୃପା କରିବେ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଛୋଟ ହରିଦାସ ଦୂରରୁ ଅବସ୍ଥାନ କରି ଲୁଚେଇକିରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। କାହିଁକିନା ମହାପ୍ରଭୁ ନିଷେଧ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ନାହିଁ। ତ ସେ ଦୂରରୁ ଅବସ୍ଥାନ କରି ଲୁଚେଇକିରି ଏହିପରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏହିପରି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି କେବେ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋ ପ୍ରତି କୃପା କରିବେ। ତ ଏହିପରି 1 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ତଥାପି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ହେଲା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଛୋଟ ହରିଦାସ ସଂକଳ୍ପ କଲେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇଛୁ ତ ଏ ଦେହ ରଖି ଲାଭଟା କ'ଣ। ତେଣୁ ଦିନେ ସେ କ'ଣ କଲେ, ରାତ୍ରି ଶେଷରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ବନ୍ଦନା କରି ଅର୍ଥାତ୍ ମନରେ ଏହିପରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ବନ୍ଦନା କରି ସେ ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ ମୁଁ ତ୍ରିବେଣୀରେ ଯାଏ ପ୍ରୟାଗ ଯେଉଁଟା ତ୍ରିବେଣୀ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ ମିଳିତ ହେଇଛି ସେଟାକୁ ଯାଇ ଏଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ମୁଁ ସେଠାରେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବି। ସେହି ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରାତ୍ରି ଶେଷରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣାମ କରି ସେ এই ପୁରୀରୁ ଚାଲିଗଲେ କେଉଁଟାକୁ, ତ୍ରିବେଣୀରେ ସେଟାକୁ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମ ଚିନ୍ତନ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କରି ଏ ତ୍ରିବେଣୀର ଗଭୀର ଜଳରେ ପ୍ରବେଶ କରି ନିଜ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ନିଜ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଗନ୍ଧର୍ବ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ଦିବ୍ୟ ଗନ୍ଧର୍ବ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଦିବ୍ୟ ଗନ୍ଧର୍ବ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଏହିପରି ମଧୁର ସ୍ୱର କୀର୍ତ୍ତନ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହିପରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ସେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଭକ୍ତମାନେ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଏମିତି ସମୟରେ ସେମାନେ ଶୁଣିପାରିଲେ ମଧୁର ସ୍ୱରରେ ସେ ଛୋଟ ହରିଦାସଙ୍କର କଣ୍ଠସ୍ୱର। ଛୋଟ ହରିଦାସଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିପାରିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ବିଚାର କଲେ କ'ଣ, ଇଏ ବିଷ ଖାଇ ଦେହ ଛାଡ଼ିଛି ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମଭୂତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହିପରି ସବୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ତାହା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ହରିଦାସ ଛୋଟ ହରିଦାସ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ ନିଜ ଜନ। ଆଉ ସେ
पवित्र तीर्थ देहत्याग कर तार असदगति हम ना तुम मैंने पर बुझीपार यही कथा कहले पर वर्ष जितेबले रथयात्रा आसी उपस्थित है रथयात्रा एक मास पूर्वर ये गौड़ देश भक्त मान सब बेंगल पुरी धाम को आसती चली चली आसिक एक मास धरी कीर्तन सहयोग से सहित आसी श्रीवास ठाकुर श्रीवास ठाकुर को पाखक जने वैष्णव आसी कहते जे कि त्रिवेणी यही दृश्य देखी किमी छोट हरिदास महाप्रभुंर पादपद्म प्राप्त हाँपाई संकल्प कर त्रिवेणी झाँस दे देव छाड़ी से कथा व्यक्त करला तो से जो आसी नवद्वीप आसी श्रीवास ठाकुर पाखक व्यक्त कले से तो श्रीवास ठाकुर जानीपारे महाप्रभु सेवार वंचित हवा जो छोट हरिदास यहीपर त्रिवेणी झाँस दे देहत्याग कर ये संवाद जिते पाइले से श्रीवास ठाकुर जितेबले रथयात्रा उपलक्षे भक्त मान सह बेंगल जितेबले नीलाचल को आसिले से जो आसी महाप्रभु प्रणाम कले महाप्रभु पचार प्रभु छोट हरिदास के उठे तो से महाप्रभु उत्तर दर्शन हसी गिरी सकर्म फलभोग प्रमाण जे जमी कर्म कर तार फल से भोग कर कथा कहीदेला तो से महाप्रभु आ दिन दुई दिन पर भक्त मान पाखे उपस्थित भक्त मान पाखे उपस्थित है जितेबले महाप्रभु भक्त मान कहते छोट हरिदास कौटे मो पाख को नहीं आस यही कथा कहला और तो महाप्रभु बर्तमान कृपार उदय है भक्त मान को परीक्षा करने से कहले छोट हरिदास कौटे मो पाख को नहीं आस तो जितेबले ये कथा कहले से श्रीवास ठाकुर कहते प्रभु यहीपरी छोट हरिदास त्रिवेणी झाँस दे आपनकर पादपद्म आश्रय कर जन वैष्णव ताहा देखी नीला नवद्वीप को आसी मत यही कथा कहले वैष्णव मान पाखे यही कथा कहले तो से तो समस्त भक्त मान जानीपारे यहीपरी छोट हरिदास महाप्रभु पादपद्म आश्रय करने प्रयाग को जाए ये संकल्प करी महाप्रभु चरण आश्रय प्राप्ति लगी संकल्प करी त्रिवेणी झाँस दे यहीपरी देह छाड़ी बर्तमान महाप्रभु नित्य पारिषद रूप से गंधर्व देह प्राप्त हो महाप्रभु गीत शुणा यहीपरी महाप्रभु निज भक्तों द्वारा जगतवासी मान को शिक्षा देवाई यहीपरी धर्म स्थापन कले तार माने जो मैंने त्यागी जीवन यापन कर गृह छाड़ी मंदिर को आसती भगवान के सेवा करने भजन करने से माने यदि मंदिर को आसी यहीपरी स्त्रीलोक मान के सहित अंतरंग संबंध रखिए से सहित यहीपरी वार्तालाप करते ताहले से माने महाप्रभु अति अप्रिय महाप्रभु से मुह दर्शन करने चाहती ना आओ से माने केवल महाप्रभु कृपा प्राप्त हो पार ना आ से माने यहीपरी भक्ति राज्य च्युत हो अधोगति प्राप्त ये शिक्षा मात्र समस्त को सचेतन हवा कथा केउथिला से गृह त्याग कर मंदिर को आसती एवं कौन करने से दिगरे विचार करी से इंद्र उपभोग विषय वस्तु ये सब परिहार करी भगवान के सेवार जो नियुक्त हे तेबे से महाप्रभु को प्रसन्न विधान करें महाप्रभु के कृपा प्राप्त हो पारे तेबे से जन्मृत्यु चक्र उद्धार हो भगवत धाम को फेरी जाए भगवान प्रेम सेवार नियुक्त हो पारे तेणु महाप्रभु संबंध में ये चैतन्य चरितामृत कहा जाउची महाप्रभु कृपा सिंधु
महाप्रभु कृपा सिंधु के पारे बुझीते निज प्रिय भक्त दंड करें धर्म बुझाइते अर्थात निज भक्त छोट हरिदास महाप्रभु अति प्रिय भक्त तांको माध्यम समग्र जगतवासी को ये धर्म शिक्षा देवाई महाप्रभु यहीपरि आचरण कर ये दंड देले छोट हरिदास 9टा बाजिगला हमार कथा ये थिला। जय श्री चैतन्य महाप्रभु कृपा सिंधु की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ जी की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, पतित पावन शिल गुरुदेव की जय, समद भक्तवृंद की।